Hello and welcome everyone on my Arvind Geography Verse YouTube channel. Dear students, today we are going to start a very important chapter and we will cover physics first of all. Very important topic for class 10th ICSE. In this we will go through syllabus by each point. Okay. For example, you see when we talk about this first chapter, that is force, in this we will study the points which are given into the syllabus. The first point is the turning forces concept, next moment of a force, force in equilibrium, center of gravity. It is given that we have to discuss it using simple explanation, and based on this simple numericals will be asked. So it is very important for us to study the basic concept, okay, so that we can clearly solve the numerical also. Clear? I hope this is clear to you all. So now we are going to start a new chapter, new topic for ICSE class 10th. So the most important thing which I would like to tell you is that in physics, see, please remember one thing. First, definition. If any definition is asked, it should be written the exact definition which is given in your book. First point. Second, numericals should have, you should write unit of all the numericals or measurements which you are using. Clear? So units and definitions from the book, these are the two key points. Third, you should learn or study book maximum as much as possible and try to solve more or maximum numericals even if the last year's numericals which are asked. Clear? So first we will cover up the theory part, then based on that we will also solve numericals first which is asked in the last few years and important numericals which are to be asked in this year. So please be tuned with Arvind Geography Verse and definitely you are going to get good marks in physics also. Okay, we'll start now. So see, the first topic here which we are going to cover is the moment of force and equilibrium. Okay, so force is applied on a rigid body. See, here we have to consider force on two objects. First, a rigid body, okay, means body, rigid body which have fixed shape, okay, it is tough enough, that body is said to be a rigid body. Clear? Body on which the distance between the 2 points never changes whatever the force is applied. यानी आप उस बॉडी को रिजिड बॉडी बोलोगे जिसमें जो पॉइंट्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर आप कितना भी फोर्स लगाओ, उस बॉडी के मॉलिक्यूल्स के अंदर या पॉइंट्स के अंदर जो पोजीशन है वो नहीं बदलेगा. यानी काफ़ी कठोर जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पे आप कितना भी फोर्स लगाओ वो टूटे नहीं, तो आप उसको समझ लेना कि कौन सी बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है. आप इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हो, अ सॉलिड बॉडी दैट हैव अ जीरो और नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन इज सेड टू बी अ रिजिड बॉडी. व्हेनेवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी, यानी जब भी एक रिजिड बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो तो ये दो प्रकार के मोशन करेगी. कितने प्रकार की मोशन करेगी? दो प्रकार की मोशन करेगी. फर्स्ट इज द लीनियर मोशन और ट्रांजिशनल मोशन एंड सेकेंड इज द रोटेशनल मोशन. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी, यानी जब भी एक स्टेशनरी रिजिड बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाता है विच इज फ्री टू मूव. ये खास बात है इसमें, यानी कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, सपोज करो ये मान लिया हमने यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, अब ये फ्री है यानी ये इजीली किधर भी चल सकता है. अगर मान लो उस पर आपने एक फोर्स लगा दिया F, ठीक है ना, तो ये सामने की तरफ इधर ये आगे बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते काफ़ी आगे चला जाएगा ना, ऐसे ये मूव करते हुए आगे चला गया, ठीक है. तो आप इस बॉडी को, the body starts moving in a straight path in the direction of applied force. This is called linear और transitional motion. यानी आप इसी को linear या transitional motion बोलते हो. किस केस में? जब किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, जैसे यहाँ हमने देखा, now this body is, ये suppose body A, when force is applied on this body, this particular body starts moving in the direction of force. जिधर फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करने लगा. इस बॉडी को आप क्या बोलोगे? दिस इज अ लीनियर, सॉरी दिस, इस मोशन को आप क्या बोलोगे? लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन. आई होप आपको क्लियर हो गया. खास बात क्या था? दिस बॉडी वॉज
फ्री टू मूव, यानी ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह फ्री था। फ्री का मतलब क्या है, अगर आप देखो, सपोज करो हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे बॉडी था फ्री, जैसे मान लेते हैं एक बॉल, फुटबॉल रख दिया हमने, ठीक है ना, फुटबॉल हो गया। अगर आपने इस पर फोर्स लगाया, इसको अपने पैर से अगर इस पर फोर्स लगाया F, तो दिस बॉल विल स्टार्ट मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर, इधर की तरफ ये चलने लगा। तो ये मोशन जो हो गया ना, यही है आपका लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन। सेकेंड केस में हम क्या देखेंगे, सपोज दिस इज द बॉडी B, अब मान लो आपने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है, ये फ्री नहीं है, इस पे आपने सपोज करो वॉल हो गया, वॉल पे अगर ये कोई सर्कुलर डिस्क है, आपने इसको यहाँ पे कील के सहारे इसको यहाँ पे लटका दिया है। क्लियर, अब आप जब यहाँ से फोर्स लगा रहे हो इसके ऊपर, तो आप बताओ क्या ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो आपने इसको एक फिक्स कर दिया हुआ है। नाउ दिस बॉडी विल स्टार्ट रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, यानी डायरेक्ट फोर्स के डायरेक्शन के हिसाब से ये इस पर्टिकुलर एक्सिस पे गोल गोल घूमने लगेगी। आप इसी को क्या बोलते हो? रोटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स बोलोगे आप इसको? रोटेशनल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा और डिफिनेशन देख लेते हैं इसका। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी स्टेशनरी रिजिड विच इज फ्री टू मूव, यानी इस बॉडी का दो कैरेक्टर होना चाहिए, पहला वो रुकी हुई हो, दूसरा रिजिड हो। रिजिड का मतलब सपोज करो ऐसा ऑब्जेक्ट है कि आपने फोर्स लगाया, वो पचक गया, डिफॉर्म हो गया, ठीक है। रबर है, अगर रबर पे आपने बहुत तेजी से फोर्स लगाया तब तक वो डिफॉर्म हो गया, पचक गया, तो वो सही से मोशन नहीं करेगा, ठीक है ना। स्टार्ट इन द स्ट्रेट लाइन पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांजिशनल मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। एग्जाम्पल्स आप इसका देखें, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट, फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉल लाइंग ऑन ए फ्लोर, it starts moving in the direction of force when it is kicked by the player. This is example of linear or transitional motion. So I hope concept clear है आपका। concept मैं clear कर पा रहा हूँ, मतलब कुल मिला के आपको मैं ये समझा पा रहा हूँ कि ये linear या transitional motion क्या है, ताकि एग्जाम में आए तो आपके अंदर कोई confusion ना हो। आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा है आपका कौन सा मोशन? नेक्स्ट इज द रोटेशनल मोशन। ओके, रोटेशनल मोशन मीन्स व्हाट? इफ ए बॉडी इज पिवोटेड, देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आया, इधर आप देखें, पिवोटेड। पिवोटेड का मतलब होता है फिक्स्ड। ओके, फिक्स का मतलब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया वॉल पे, जैसे आप आपके घर में देखोगे, आप कोई फोटो होगा, फोटो वगैरह होता है, आप उसको क्या करते हो ना, वॉल पे फिक्स कर देते हैं, लटका देते हैं, तो एक फिक्स कर देते हैं ना एक पॉइंट पे, उसको पिवोटेड बोलेंगे। एंड ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एट अ सुटेबल पॉइंट, यानी अगर ये सपोज करो हमने यहाँ फिक्स कर दिया, इसको पिवोट कर दिया और हमने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, क्या? F. इट रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पिवोटेड पॉइंट। अब ये जो पिवोटेड पॉइंट है ना, इसी पे ये जो ऑब्जेक्ट है फोर्स लगाने के बाद ये गोल गोल घूमने लगेगा, अपने एक्सिस पे ही घूमेगा, उस फिक्स पॉइंट पे ही घूमेगा। आप इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अब यहाँ खास बात क्या हो गया सॉरी, पहला वो ऑब्जेक्ट फिक्स होना चाहिए, रिजिड भी होना चाहिए। फिक्स नहीं होगा तो तब तो वो सामने चलने लगेगा, ट्रांजिशनल मोशन करने लगेगा, लेकिन वो फिक्स होगा तो अपने ही जगह पे गोल गोल घूमेगा, दैट विल बी said to be, that body will said to be have a rotational motion. So the effect of this is also called rotational motion, यानी rotational motion fixed point की वजह से होता है, pivoted point की वजह से होता है। Now example we will see first, a wheel is pivoted at the center, starts rotating on its axis। बोला कोई भी व्हील है, जैसे पहिया है, अगर जैसे साइकिल का ही पहिया ले लो, जो आप पैडलिंग करने लगते हैं तो वो फिक्स है, इसीलिए अपनी जगह पे गोल गोल घूमने लगता है। ओके, सेकंड एग्जांपल इज रोटेशन ऑफ ए ग्लोब। ग्लोब अपने एक्सिस पे फिक्स होता है, फिक्स है ना। अब यहाँ आप इसको रोटेट करोगे तो यहाँ पे गोल गोल घूमने लगता है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रोटेशनल मोशन। अर्थ ऑल्सो डज रोटेशनल मोशन विच इज द बेसिक कॉज ऑफ डे एंड नाइट। फोर्स अप्लाइड ऑन अ हैंडल ऑफ अ डोर, यानी कोई डोर हो गया, जब आप उसको पकड़ के उसका हैंडल फिक्स ही तो है हैंडल, ठीक ना। जैसे हैंडल हो गया, आप उसको जैसे ये देखो, चलो फिगर में देख लो आप, यहाँ जैसे यहाँ पे हिंग में ये फिक्स है, दीवार में फिक्स होता है ना, आप इसको यहाँ से फोर्स लगाओगे तो गोल गोल घूमेगा, खुलता है और बंद होता है। दिस एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो मैंने आपको दोनों मोशन समझाया, जो फिक्स होगा आप उसे रोटेशनल मोशन के अंदर कंसीडर करेंगे, वहाँ पे होगा रोटेशनल मोशन, और वो जो ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं होगा, फ्री टू मूव होगा, वहाँ पे आपका ट्रांजिशनल मोशन होगा। क्लियर?
आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोमेंट ऑफ ए फोर्स और टॉर्क, वेरी इंपॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, फर्स्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ टॉर्क। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आप देखो मैं कितने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। ओके, फर्स्ट देखिए यहाँ पे, फर्स्ट अ बॉडी इज पिवोटेड एट पॉइंट है। सपोज करो ये बॉडी हो गया, हमने डायग्राम ले लिया, ये कोई एक ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने पॉइंट ओ पे पिवोट कर दिया, यानी यहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे किल मार दिया, ठीक है ना। अब ये दीवार या कहीं है, यहाँ पे ये फिक्स हो गया, ये घूम नहीं सकता है, मतलब ये जगह चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स हो गया। फोर्स इज अप्लाइड, सपोज कर लो आपने यहाँ पे फोर्स लगा दिया एफ हॉरिजॉन्टली एट द लाइन ऑफ एक्शन एट द डायरेक्शन एपी, ठीक है ना। आपने यहाँ पे फोर्स लगाया और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या हो गया, ए एंड पी, डन। बॉडी इज फिक्स्ड सो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग एट अ पॉइंट ए। हमने पहले ही बोला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप फिक्स कर रहे हो तो वो उसी एक्सिस पे घूमना स्टार्ट करेगा। अब ये देखें, ये इधर की तरफ घूमना स्टार्ट करेगा, डन, ऑलरेडी एरो मार्क करके दिया हुआ है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप देख लो, आपको थोड़ा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लॉक्स मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आवर हैंड इधर की तरफ मूव करेगा, आप इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके ठीक उल्टा डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है तो आप क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, डन। तो अब यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखो आप, सो दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इन ए डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। अगर मान लो ये फोर्स अगर हम यहां लगाए होते या ऊपर से नीचे की तरफ इधर लगाए होते तो भी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जाता। लेकिन अगर वही ये फोर्स हम इस साइड लगाए होते तो ये किधर मूव करता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप ये समझ में आया पॉइंट। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगने के बाद अगर कोई पॉइंट पिवोटेड है, फिक्स है, इट विल मूव आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वो डिपेंड करेगा कि फोर्स किधर लगाया गया हो। जैसे इस एग्जांपल में देखें आप, यहाँ पे फोर्स इस साइड लगा है, इधर लगा है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अगर वही फोर्स इस यहाँ लगता तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करता। तो कॉमन सेंस, बहुत इसमें घबराने की बात नहीं है। ओके, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग ऑफ ए बॉडी, यानी ये जो बॉडी है ये पिवोटेड पॉइंट ओ पे टर्न करना स्टार्ट करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी, isn't it? This body will start rotating on a pivoted point O. Now what are the factors on which it depends? किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है? तो फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो 5 न्यूटन 50 न्यूटन, आपने 5 न्यूटन लगाया तो कम बल लगा तो थोड़ा धीरे से गोल घूमेगी, वही 50 न्यूटन लगाया तेज फोर्स लगा तेज गोल घूमेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड सेकंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन, यानी यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये कितने डिस्टेंस पे है, डी, क्लियर। तो ये दो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दूसरा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया, आप देख लो लाइन ऑफ एक्शन हो गया ना। अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना दूर है इस पॉइंट पे भी निर्भर करता है, क्लियर। आगे देखें आप, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी या टॉर्क, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, आप इसको बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। अब मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क को आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? फर्स्ट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ। यहां पे अगर आप मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हो तो कैसे निकालते हैं? देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम पॉइंट ओ। यानी आप देखें, ये आपका हो गया, ये कितना आपने फोर्स लगा दिया, एक फैक्टर। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना हो तो आप पहले फोर्स हो गया, उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया कितना, डी। सो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओपी, दैट इज डी, क्लियर। फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब खास बात देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस की बात, अगर सपोज करो टॉर्क हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स टॉर्क इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब क्या है, अगर फोर्स ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, और अगर ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो टॉर्क भी ज्यादा होगा। क्लियर? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आई होप ये क्लियर हो गया। ये पॉइंट पहले समझ में आया कि ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा तो भी टॉर्क क्या होगा, ज्यादा लगेगा। क्लियर? यानी मोमेंट ऑफ फोर्स की हम बात कर रहे हैं। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट द एक्सिस ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क अप्लाइड ऑन ए बॉडी। यानी अब कोई ऑब्जेक्ट फिक्स पॉइंट पे जो टर्न कर रहा है गोल गोल, वो टॉर्क पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? टॉर्क अप्लाइड। और टॉर्क किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। ओके, अब देखो यहां हमने थोड़ा ये पॉइंट ले लिया है, आपको ये याद ट्रिक बनाया है याद रखने के लिए। देखें थोड़ा सा, फॉर टॉर्क ज्यादा, यानी ज्यादा टॉर्क होने के लिए फोर्स और परपेंडिकुलर शुड ऑल्सो भी ज्यादा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए। इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, बोथ होगा। वर्क और एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन नहीं होगा। डन। नाउ यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क की यूनिट हमने क्या देखी थी? अभी हमने फॉर्मूला देखा था, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो इसमें क्या हो गया, इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर। वेरी इजी। इसका सीजीएस यूनिट अगर हम बात करें क्या होगा, तो न्यूटन मीटर की बजाय क्या हो जाएगा, न्यूटन का हो गया डाइन और मीटर का हो गया सेंटीमीटर, यानी डाइन सेंटीमीटर। क्लियर? सो आई होप दिस इज क्लियर। अगर इफ फोर्स इज मेजर्ड इन ग्रेविटेशनल यूनिट, यानी अगर ग्रेविटेशनल यूनिट्स की हम बात करें, ठीक है, ग्रेविटी के टर्म्स में, ओके, तो उसका क्या हो जाएगा, kgf इंटू मीटर। यानी आप यहाँ पे न्यूटन मीटर की बजाय क्या यूज करोगे, kgf इंटू मीटर, और इसका जो सीजीएस यूनिट हो जाएगा वो ग्राम फोर्स इंटू सेंटीमीटर। क्लियर? ये इससे रिप्लेस होगा, और ये देख लेंगे आप थोड़ा। क्लियर? ये थोड़ा न्यूमेरिकल में ये हेल्पफुल होता है। ओके, क्लियर? तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन यूनिट्स में दिया होता है, और अगर आपको यहाँ यूनिट्स क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल आप गलत करते हो। इसलिए यही बेसिक बातें हैं जहाँ जिसकी वजह से आप न्यूमेरिकल से घबराते हो और गलत हो जाता है, तो याद रखेंगे। क्लियर? आई होप दिस इज। अगर ग्रेविटेशनल यूनिट में होगा तो न्यूटन ना देके kgf में देगा, डिस्टेंस देगा मीटर में, और उसकी सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करें तो वहाँ डाइन न देके ग्राम फोर्स देगा और यूनिट देगा सेंटीमीटर। सेम न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। देखो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। ये वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बार बार ये खुद ही में पूछता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। डन। अब देखो आप न्यूटन से हमने डाइन में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब ये मीटर छूट रहा है, मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 2 करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। डन। तब ये 5 जैसे सपोज करो क्या हो गया, 10 के पावर 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 2, तो ये क्या हो गया, 10 के पावर ऐड हो जाता है, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ट्रिक देखो, डाइन होता है ना जो भूत वाला, हम लोग बोलते हैं डाइन भूत, इस टाइप का। हमेशा याद रखो न्यूटन डाइनों से भी खतरनाक था, क्योंकि 1 न्यूटन लगभग 1 लाख डाइनों के बराबर था। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। क्लियर? तो ये 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये प्लीज आप इसको जरूर याद रखें। kgf मीटर के हम बात करें तो ये हो गया 9.8, 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ये याद रखेंगे आप, कन्वर्जन में इंपॉर्टेंट है। या 1 ग्राम फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 989 सेंटीमीटर। प्लीज डेफिनेशन, ये कन्वर्जन आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हमने बोला था अगर क्लॉक हो गया ना, अगर घड़ी के सुई के दिशा में जा रहा है तो आप बोलोगे कि क्लॉकवाइज हो गया, और अगर इसके ठीक उल्टा जा रहा है तो क्या बोलोगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, कॉमन सेंस। अगर घड़ी के सुई के दिशा में तो क्लॉकवाइज, और अगर उल्टा हो गया तो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखें, इफ द इफेक्ट बॉडी टर्न्स इन एंटी क्लॉकवाइज, यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगी, यानी घड़ी के ठीक उल्टा, ठीक है ना, तो मोमेंट जो होता है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, आप उसको पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं इसको, पॉजिटिव। और अगर इसको एक वर्ड मोमेंट, अब इसमें जो मोमेंट लगेगा फोर्स का वो आउटवर्ड लगता है। कहां लगेगा, आउटवर्ड।
और क्लॉकवाइज होगा तो आप इसको क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और ये जो मोमेंट है किधर लगेगा, इनवर्ड लगेगा। क्लियर। किसी ऑब्जेक्ट पे जो आप फोर्स लगा रहे हो तो वो किधर गोल घूमेगा, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि उसमें फोर्स हमने किधर से लगाया है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है। क्लियर। यानी अगर सपोज करो कोई गोल ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज की तरफ फोर्स लगा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा है और कम है, इन दोनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। तो दो फैक्टर्स आप प्लीज याद रखें इनको। इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। ये आपके क्वेश्चंस में 1 या 2 नंबर का पूछ सकता है कि जो रोटेशन है किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स लगने के बाद वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस दिशा में बल लग रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी वो फोर्स कहाँ पे लगा है, पॉइंट ऑफ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे कितना पास कितना दूर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। बोल रहा है कि अगर जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, अगर मान लो आप अभी कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज, आप उसको चाह रहे कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। पहले फॉर एग्जांपल देखें आप यहाँ पे, ये एग्जांपल देखो, सपोज करो ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ अगर हमने फोर्स लगा दिया F तो ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही अगर आपने फोर्स ऊपर लगा दिया यहाँ पे तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को आप लेते हो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को क्या लेते हो, नेगेटिव। डन। बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसके लिए क्या है देखें आप, फर्स्ट अगर मान लो फोर्स जो लग रहा है वो इस पॉइंट पे यहाँ पे लग रहा है, ओके, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव लेंगे, और वही अब फोर्स ऊपर से लग रहा है नीचे की तरफ तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हमने डायग्राम के थ्रू भी लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट देखो, जो रीजनिंग जो हमने रीडिंग से हाईलाइट किया हुआ है वो तो ऑलरेडी एग्जाम्स में यही पूछेगा, तो ध्यान देके बस आगे बढ़ जाना है। फर्स्ट, हैंडल ऑन ए डोर इज प्रोवाइडेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्वेश्चन है कि जो हैंडल होता है ना दरवाजे का, जिसको पकड़ के हम खोलते हैं बंद करते हैं, वो देखोगे तो दरवाजे के बिल्कुल लास्ट छोर पे होता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। देखो उसका रीजन देखो, जो टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी टॉर्क ज़्यादा करने के लिए आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए। सपोज करो ये दरवाजा है, इसलिए हम हैंडल दूर लगाते हैं ताकि ये इससे डिस्टेंस क्या हो जाए, ज़्यादा। और अगर ये टॉर्क ज़्यादा होगा तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो क्या लगेगा, कम लगेगा। क्लियर। देख लें आप, is provided at maximum distance from the hinge so that smaller force at large perpendicular distance from the hinge produce maximum force of moment of force required to open or shut the door. Clear? तो यानी जो आप फोर्स लगाएंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वो घट जाता है, कम लगता है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसीलिए हम जो हिंग होता है ना, हैंडल, जो हिंग का मतलब जहाँ ये लटका होता है दरवाजा, इस डायग्राम में देख लो आप, देखो ये हो गया हिंग, जहाँ ये फिक्स है, और ये हो गया आपका ये हैंडल, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा होता है। क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, हैंडल ऑफ द हैंड फ्लावर, यानी जो चक्की होती है ना घरों में, पहले अभी भी यूज़ की जाती है, उसमें देखो ये हो गया। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ना, जहाँ से ये इसकी हैंडल है, इसका डिस्टेंस लास्ट होता है, यानी बिल्कुल सर्कमफ्रेंस के पास इसको लगाया जाता है। यहाँ भी तो लगा सकते थे आप, लेकिन यहाँ ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ओके। लेकिन यहाँ इस केस में क्या है, ये जो डिस्टेंस है ना ये मैक्सिमम है, इसलिए इसको बिल्कुल लास्ट यानी छोर पे लगाते हैं, नियर द रिम। ओके। क्लियर। सो दैट इट कैन बी इजीली रोटेटेड, ताकि इसको हम इजीली रोटेट कर दें। कुल मिला के यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस का खेल है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ज़्यादा रखने के लिए हम ये सब अरेंजमेंट करते हैं। आप रीजनिंग में बस सिंपल पॉइंट यही लिखेंगे। थर्ड, फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन ए रिम ऑफ ए व्हील। ओके। सेंस ऑफ रोटेशन चेंज बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बोला कि अगर कोई भी फोर्स हो गया, जैसे मान लो ये जो अगर हम बात करें, जैसे ये देख लो आप, इसमें जैसे हैंडल होता है ना ट्रक वगैरह का, उसमें जो फोर्स होता है वो, जैसे भारी व्हीकल्स जो होता है ना ट्रक वगैरह, उनका देखोगे तो हैंडल भी काफ़ी बड़ा होता है, गोल गोल खूब वो बड़ा सा घुमाते हैं, ठीक है ना। बड़ा होता है तो फोर्स उनको कम लगाना होता है, अगर वो छोटा होता तो उसका फोर्स ज़्यादा लगाना होता। और जो चेंजिंग जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी उसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाने में ना बड़ा होता है ना, तो आसानी होती है।
क्लियर। तो आप ये याद रखो, ये जो रिम है ना, ये वाला जो पार्ट है उसको दूर किया जाता है ताकि ये जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाए। समझ में आ गया। अब ये बड़ा हो गया तो आप इसको चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, ये आसानी से घूम जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इन अ बाइसाइकिल टू टर्न द रियर व्हील, यानी पीछे, रियर का मतलब होता है पीछे वाला। जैसे ये सपोज करो ये पीछे वाला हो गया ना, इसी में अटैच होता है व्हील जिससे साइकिल आगे चलता है। अब देखिए यहाँ पे ये एक्सेल हो गया और यहाँ हो गया ये पैडल। अब देखो इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस बड़ा होता है, ये दूरी हम बढ़ा लेते हैं तो टॉर्क बढ़ जाता है। क्लियर। और इसके सहायता से जो चैन, इसके थ्रू ये जो चैन लगा हुआ है ना, इससे हम कम फोर्स लगा के इजीली ये साइकिल को क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं। इसीलिए जो पैडल है ना वो एक्सल से काफ़ी दूर किया जाता है। जितना बड़ा अगर फुट का पैडल और एक्सल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होगा वो साइकिल उतना ही हल्का चलता है। पहले का जो पुराना साइकिल था ना उसमें काफ़ी बड़ा आगे का जो ये क्या बोलते हैं कि व्हील होता था ना, वो काफ़ी बड़े साइज़ का होता था, तो लोग बहुत आसानी से यहाँ से गाजीपुर बनारस साइकिल से चले जाते थे। अब जो नया वाला साइकिल आ रहा है देखो, जिसमें आप लोग चला रहे हो, 2-4 किलोमीटर चलाने के बाद हाँफने लगते हो। क्यों? क्योंकि उसका देखो छोटा कर दिया है। समझ में आया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिल और फुट पैडल के बीच में, उसको कम करने पे फोर्स ज़्यादा लगाना होता है। पहले हाँफ जाते हो, पहले में बड़ा आता था तो इसलिए लोग काफ़ी दूर तक चलते थे। क्लियर। आई होप समझ में आ गया। देखो यहाँ पे मेन बातें क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिल ऑफ व्हील इज लार्ज, यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं एक्सेल पे वो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। कुल मिला के जितना रीजनिंग है उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही गेम है। आपको लिखना होगा कि ये ज़्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है। डन। स्पैनर, ये स्पैनर देखो, ये साइज जो स्पैनर होता है ना, सपोज करो अगर हम बात करें यहाँ पे देख लें, अगर आप यहाँ अगर मान लो कोई नट बहुत बड़ा होता है और इसको ईजिली लोग क्या करते हैं, खोल देते हैं। ओके। स्पैनर यूज टू टाइटन और लूजन द नट हैज लार्ज नट टू प्रोवाइड लार्ज मोमेंट ऑफ फोर्स बाय स्मॉल एप्लीकेशन नॉर्मली एट द एंड ऑफ द हैंडल। क्लियर। तो ऐसा करते हैं हम। लास्ट हो गया आपका, यहाँ पे देखिए आप, अगला है जैक। देखो ये जैक होता है ना जिसमें ट्रक, ट्रॉली वगैरह कुछ भी आप उठा सकते हो। ट्रैक्टर वगैरह अगर पंचर हो जाता है तो हम इससे उठाते हैं ताकि वो इजीली उठ जाए। अब इसमें देखो क्या है, सच व्हीकल हैज़ ए लॉन्ग आर्म। इसका ये आर्म होता है ना, ये बड़ा होता है। ठीक है ना, ये आर्म क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों? सो दैट लेस एफर्ट इज नीडेड टू रोटेट इट। अगर ये बड़ा होगा ना तो आप, ये डिस्टेंस बड़ा हो गया तो ये पॉइंट ऑफ फिक्स है, मान लो यहाँ से इसको गोल घूमना है, तो जितना ये बड़ा होगा आप उसको उतना ईजिली इसको रोटेट कर पाएंगे। ठीक है ना। और जितना छोटा होगा उतना मुश्किल से रोटेट कर पाते हैं। ओके। जब आप बढ़ा लोगे तो ईजिली फोर्स लगा के रोटेट कर लोगे तो आप ऑब्जेक्ट को ईजिली ऊपर नीचे कर सकते हैं। क्लियर। मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी है, आप उसको एक बार देख लेंगे। ओके। सो आई होप ये इतना पॉइंट आपको ईजिली समझ में आ गया है। अगले पॉइंट्स हम लेंगे कपल, और जो न्यूमेरिकल के लिए है मोमेंट ऑफ फोर्स। जितना भी बाकी जो टॉपिक बच गया है उसको अब आगे लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लेंदी ना हो जाए इसलिए हमने ये फर्स्ट लिया। ओके। नो प्लीज़ इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज शेयर इट योर टू फ्रेंड्स। आफ्टर दिस वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल, ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच आर आस्क्ड एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स विच विल बी आस्क्ड। हम तरीका पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कि कैसे आप न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।